Comparison of valence bond and molecular orbital theories. Similarities. Common features of two theories are both the theories explain formation of covalent bond. That is, covalent bond can be defined as the mutual sharing of electrons. In both theories, covalent bond is formed by overlapping of atomic orbitals that have appropriate symmetry about the molecular axis. Overlapping of atomic orbitals mean when two atomic orbitals combine to each other, they may be linear overlap or may be heads-on approach. They will form new orbitals, and covalent bond is formed. They have the symmetry in about the molecular axis. According to both theories, electronic charge resides in the region between the two atomic nuclei. The line joining between two nuclei axis, at that place the charge density is very high. Both the methods leads to the formation of two types of bond, that is sigma and pi bonds. Sigma bond is formed by head-to-head overlapping, and pi bond is formed by parallel fashion or parallel overlapping. In both the methods, atomic and molecular orbitals are filled according to the principles that may be Aufbau-Hund's या Hund's rule, Aufbau principle, Pauli exclusion principle. ये rules आपने पढ़े हैं, तो इनके अकॉर्डिंग आपने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है. Next is the differences, valence bond theory and molecular orbital theory. In VBT, valence electrons are involved in the bond formation, but in case of molecular orbital theory, all the electrons that are interacting are involved in the bond formation. In VBT, only conserved atomic orbitals don't lose their individual identity. कि जैसे ये atomic orbitals आपस में मिक्स होते हैं या atomic orbitals की कुछ atomic orbitals participate करते हैं bond formation में involve होंगे, तो वो अपनी identity को lose नहीं करते. But in case of molecular orbitals, when the overlapping take place, they lose their identity, because when the overlapping take place, they mix with each other and they lose their identity. They form new orbitals. When atomic orbitals combine, they form new orbitals. They are known as molecular orbitals. They are different in energy, therefore they lose their identity. In VBT, it does not explain the paramagnetic behavior of oxygen molecule. According to VBT, it may be diamagnetic in nature, but it is paramagnetic in nature, and it is explained by the MOT that shows that oxygen is paramagnetic in nature. It is the electrical properties, because it is present in unpaired electronic form. In VBT, it does not give idea or information about the bond order, that how we can calculate the bond order of any species, any molecule, any atom, के कोई भी atom जो है वो कितने bond बना सकता है at a time. But in case of molecular orbital theory, it gives information about the bond order, and it gives the formula, that is we can calculate how we can calculate the bond order. Bond order is equal to number of electrons in the bonding molecular orbitals minus number of electrons in the anti-bonding molecular orbitals divided by 2. So we can calculate that how much bond is formed by the atoms or molecule. In VBT, it does not explain the non-existence of He2 molecules, but in MOT it shows the existence of it explains the non-existence of He2 molecules. अब हीलियम जो है उसका ये पता चला था VBT के अकॉर्डिंग कि ये एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, लेकिन हमें ये नहीं श्योरिटी थी कि वो कैसे हम उसके बारे में जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये जो है वो नॉन एग्जिस्टेंस है, मीन्स कि ये स्टेबल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती. तो ये हमें MOT ने एक्सप्लेन किया. Next is the bond energy or bond enthalpy. When the bond is formed, then energy is released, so the reaction will be exothermic, in which the energy is released. When the bond is broken, then large amount of energy is required to break the bond, so energy is absorbed and the reaction will be endothermic, in which energy is absorbed. Bond energy can be defined as the minimum amount of energy required to break all bonds of particular type in 1 mole of substance. कि अगर आपके पास substance को 1 mole लेंगे तो उसमें जितने भी bonds होंगे उनको break करने के लिए जितनी भी energy required होगी, that is the bond energy.
व्हेन द बॉन्ड एनर्जी इज़ ग्रेटर देन द बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्गर। इट मीन्स कि अगर आपकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, तो वो स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उसको ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर है ताकि वो ब्रेक हो सके। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग है। The amount of heat that involves in the bond formation or bond broken is known as bond enthalpy. It is take place at 298 Kelvin. The enthalpy change in splitting a molecule into its component atom is called enthalpy of atomization. And the units of bond energies are kilojoule per mole, and kilojoule per mole it means कि energy required to break 6.02 into 10 is power 23 bonds, कि एक मोल में आपके bonds कितने होंगे 6.02 into 10 is power 23। तो उसके लिए जितनी amount of energy required होती है तो वो आपकी bond energy होगी, and its unit is kilojoule per mole। And the bond energy of double bond is not twice as strong as single bond, or not triple bond is not thrice as single bond, कि जो एनर्जी होगी वो डबल की बॉन्ड की ज़्यादा नहीं होगी, सिंगल बॉन्ड से डबल नहीं होगी, और ट्रिपल बॉन्ड की ट्रिपल नहीं होगी सिंगल बॉन्ड से, क्योंकि ये आपका डिपेंड करता है बॉन्ड लेंथ पे। ठीक है, ये आगे फैक्टर्स आ रहे हैं तो उसको वन बाय वन एक्सप्लेन करती हूँ। अब इसमें सिग्मा बॉन्ड अगर आपका स्ट्रॉन्गर है देन पाई बॉन्ड, तो इसकी रीज़न क्या आ जाती है? सिग्मा बॉन्ड में sigma bond is very strong bond because the charge density lies between the line joining two nuclei. In case of pi bond, the charge density lies above and below the line joining two nuclei. उसमें बॉन्ड एक्सिस में नहीं आपकी होती। अगर सिग्मा बॉन्ड में देखें तो जो लाइन ज्वाइन कर रही है, टू न्यूक्लियाइज को आपस में मिला रही है, तो वहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से उसको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी उसको ब्रेक करने के लिए। डेट्स वाई वी कैन से डेट सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर। पाई बॉन्ड के केस में क्या होता है कि वो नोडल प्लेन होती है, वहाँ पे जो लाइन ज्वाइन कर रही है टू न्यूक्लियाई को, वहाँ पे आपकी चार्ज डेंसिटी नहीं होती है, अबव एंड बिलो होती है। अबव एंड बिलो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से बॉन्ड एक्सिस पे नहीं होगी। जब वहाँ पे बॉन्ड एक्सिस पे नहीं होती तो इस वजह से इसको कम एनर्जी रिक्वायर होती है ब्रेक करने के लिए, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी। डेट्स वाई ये आपका वीक होता है। नेक्स्ट आपकी एग्जांपल्स आ जाती हैं। एग्जांपल्स में बॉन्ड एनर्जी हाइड्रोजन HH बॉन्ड की इन H2 मॉलिक्यूल एट 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन इज़ 435 किलोजॉल पर मोल। बॉन्ड एनर्जी क्लोरीन की देखें तो वो 25 पे 242 है। तो ये डिपेंड कर रही है आपकी बॉन्ड लेंथ पे, जिसकी ये बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड कर रही है। इस तरह HCl की देखें तो वो 431 किलोजॉल पर मोल है। अब ये जो है वो किस किस चीज़ पे ये आपकी डिपेंड कर रही है? बॉन्ड एनर्जी 4 फैक्टर्स पे आ जाती है ये बॉन्ड एनर्जी एंड आयनिक करैक्टर। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ टू फॉर्म अ बॉन्ड। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का बॉन्ड के साथ डायरेक्ट रिलेशन है बॉन्ड एनर्जी के साथ। अगर आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होती है कि अगर आपके पोल्स क्रिएट हो जाती हैं, एक आपका पॉजिटिव पोल होगा, एक आपका नेगेटिव पोल होगा। जब पोल्स क्रिएट हो जाते हैं इट्स मीन के वो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी तो इट्स मीन कि आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी उसको ब्रेक करने के लिए। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज़ डायरेक्ट रिलेशन विद द बॉन्ड एनर्जी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा, बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होगी, तो बॉन्ड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। नेक्स्ट इज़ द साइज़ ऑफ द बॉन्डेड एटम। अगर साइज़ जो है इसका बॉन्ड एनर्जी के साथ इनडायरेक्ट रिलेशन है, साइज़ लार्जर होगा, बड़ा साइज़ होने की वजह से उसमें जो एटम्स होंगे वो लूजली पैक्ड होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होंगी, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी उसको ब्रेक करने के लिए, इजीली ब्रेक हो जाएगा। इट्स मीन के साइज़ इंक्रीज़ होने से बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है। इनवर्स रिलेशन। एंड नेक्स्ट इज़ बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ का भी वही बात आ जाती है, इनडायरेक्ट रिलेशन। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो वो चार्ज न्यूक्लियाई जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती, उसमें डिस्टेंस ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है, तो इस वजह से वो इजीली ब्रेक हो सकती है। तो जो अगर बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होगी तो उतनी ज़्यादा वो टाइटली और स्ट्रॉन्गली पैक्ड होती है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी ज़्यादा क्लाउडेड फॉर्म में होगी, तो वो फिर बॉन्ड एनर्जी कम हो बॉन्ड एनर्जी उसकी कम होगी। इसका यही मीनिंग है कि आप अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ हो रही है तो आपकी बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है।
इन्वर्स रिलेशन। नेक्स्ट इज़ द बॉन्ड ऑर्डर, दैट इज़ द नंबर ऑफ बॉन्ड्स। इसका डायरेक्ट रिलेशन है, जितने ज़्यादा बॉन्ड होंगे उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा, उतनी ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी होगी, डेट्स वाई उसको ब्रेक करना डिफिकल्ट होगा और इज़ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी, डेट्स वाई ग्रेटर द बॉन्ड्स ऑर्डर ग्रेटर विल बी द बॉन्ड एनर्जी। नेक्स्ट आपकी एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये HF, HCl, HBr, हाइड्रोजन आयोडाइड। बॉन्ड एनर्जी बताई हुई है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस बताया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे भी आपकी ये सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये आप याद तो नहीं हो सकती, लेकिन यह है कि थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, कि इतना आपको आना चाहिए कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किसकी ज़्यादा है किसके काम में। जिस तरह हाइड्रोजन बॉन्ड है उसकी 436 है, क्लोरीन की 242 है। तो ये सारे जो फैक्टर्स अभी मैंने बताए हैं तो उसको ये वर्डिंग में लिखा हुआ है नेक्स्ट पेज पे, तो आप इसको एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा और जो टेबल है वो भी एक नज़र देख लें, आपको आइडिया होगा किसकी कम है बॉन्ड लेंथ और किसकी ज़्यादा है। एवरेज बॉन्ड एनर्जीज़ भी बताई हुई हैं। एवरेज बॉन्ड एनर्जीज़ में आपने वो कर लेनी है थोड़ी बहुत जो मेन चीज़ें हैं ना, जैसे कि कार्बन कार्बन की है, कार्बन ऑक्सीजन की है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की है, ये वाली आप कर लेना याद।